students. We are studying statistics. Our chapter collection of data we have started. In this, till now, we have studied what is data, what is the importance of data, and how many types of data are there. Okay, now let's move ahead. When we say primary method of data, there are two types of data, primary and secondary. Primary method of collection of data, it is first quantitative data and qualitative data. Quantitative data, when surveys are done by way of personal interviews, mail, in-house, self-administration, telephone, email, fax, all the data is collected. That all data which is collected is quantitative data. Okay? Here it may be done through experiments, mechanical observations, or simulations. There are many types of examples for primary data, which quantitative data, that if anybody is going for interview, you are going for admission, this is also, all this data is collected by one to one, means from one person to the another one. Second is qualitative data. Here it is not measured in numerical terms. It is measured by the way of behavior a person is doing. It is qualitative data. Focus groups means there are 4-5 groups and how they are seeing which group is performing better. Individual depth, how the understanding level. Then interviews, how they are taking some general interviews where they are able to understand human observation, how all are performing, how all are behaving, how all are seeing, how all are responding. These types of data are there. Case studies are given and then they are told to solve that. In BS, business studies, you are studying, in that you are having case studies, and for every matter you are seeing there is a different type of solutions. This all is qualitative data because this we cannot measure in numeric terms. Okay. Now, what is quantitative and qualitative information? Based on numbers, when quantitative data we are taking, it is based on numbers. For example, 56% of 18-year-old drinks alcohol at least 4 times a week. Doesn't tell you when, why, how, means the teenagers or the youngsters, they consume 56% of alcohol. But in qualitative data, we get more detail when, how, why, all these details we are getting in qualitative information. Now, primary research categories. What are the categories of primary research? Okay. It is quantitative research, numerical. Now, quantitative research may be numerical, statistically reliable. Numerical means it is taken in numbers. Statistical reliable means we can rely. It is correct to some extent. We cannot say it is 100% correct. But the statistical data is more reliable than the raw data. Projectable to a broader population. Here we are not taking individuals. Here whatever calculations we are doing, that we are taking on a greater level, broader level of population or broader level of data. Now, what are the different types of methods? The different types of methods are sampling methods. In sampling methods, they are taking samples. Samples means what? Here,
First is random samples. Random samples means out of group. Here we are having example 7 people are standing. Out of that any one is selected randomly. So everybody is having equal chance. Means मैं इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ. सबका ये चांस है कि हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. may select those not in the target group indiscriminate. यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ग्रुप में नहीं है वो सिलेक्ट हो जाए. दिस इज़ इनडिस्क्रिमिनेशन. सैम्पल साइज मे नॉट बी लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेटिव. सैम्पल साइज जब हम कर रहे हैं तो सैम्पल बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो हम लोग उसको ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. रैंडम सैम्पलिंग इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको ऐसे ही एक साथ में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास 11th, राइट. आउट ऑफ दिस यू आर हैविंग, इफ़ देर आर 30 स्टूडेंट्स, इन 30 स्टूडेंट्स में से सबका लेवल तो एक नहीं है, रैंडमली सिलेक्ट हुआ है. अगर वो जो सिलेक्ट हुआ है स्टूडेंट वो अबाव एवरेज है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, और बहुत पुअर है, दोनों में से कुछ भी, तो ये रैंडम सैम्पलिंग में जो सब सिलेक्ट किया हुआ है क्या वो पूरी क्लास को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा? नो, ये सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा सही रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो these are sampling methods and first is random sampling. Stratified और segment random samplings. इसमें क्या हुआ? सैम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेटा और सेगमेंट. सोचा कि इस तरीके के सैम्पल को सिलेक्ट करना है. रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं बट फिर भी मन में है कि हमको इस कैटेगरी के लोगों को सिलेक्ट करना है. कुछ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी एक क्लास का एग्जांपल दिया तो उसमें इन्होंने फोकस किया कि जो 90 अबाव है उसमें से एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया, जो बिलो एवरेज जो सिर्फ 30 to 40% लाते हैं उनमें से एक सिलेक्ट करें. मीन्स रैंडमली सिलेक्ट हो रहा है पर वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि हम इस तरह से कर सकते हैं. ये वाला जो होता है मे गिव मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. ये रैंडम सैम्पलिंग से ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है बट इट में बी मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव. यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमें लग सकती है. नाउ क्वांटिटेटिव रिसर्च कैटेगरीज कौन सी हैं? कोटा सैम्पलिंग, वो भी सेगमेंट से. नॉट रैंडमली सिलेक्टेड, यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट नहीं हो रहा है. स्पेसिफिक नंबर ऑन ईच सेगमेंट आर इंटरव्यूड, यानी एक प्रॉपर सेगमेंट, एक प्रॉपर लेवल डिसाइड किया हुआ है जहाँ पे उसे चेक किया जा रहा है. मे नॉट बी फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव, सब कुछ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टोटली जो आ रहा है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो परफेक्ट आए. इट इज़ चीपर, ये अगर हम देखें तो इट इज़ कंपैरेटिवली चीपर टू रैंडम सैम्पलिंग. नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च कैटेगरीज कौन सी है? क्वालिटेटिव रिसर्च हमें बताते हैं इन डेप्थ इनसाइट जनरेटिंग नॉन न्यूमेरिकल और डायरेक्शनल. कॉमन टेक्निक्स, इसमें मोस्टली जो कॉमन टेक्निक्स हमेशा होती है वो पर्सनल इंटरव्यूज़ हो गया जिसमें एक से एक बात कर रहे हैं. ठीक है, इसमें मेन फोकस किन ग्रुप्स पे होता है? वो ग्रुप्स जैसे 8 to 12 हो गया, मिनी ग्रुप्स हो गए 3 to 6 हो गए. तो ये कॉमन अलग अलग टेक्निक्स है कि फोकस ग्रुप्स में हम किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मैथड. तो इसके अलग अलग मैथड्स में से ऑब्जर्वेशन मैथड कौन से हैं? थ्रू पर्सनल ऑब्जर्वेशन या पर्सनल इंटरव्यूज़. आपने देखा होगा कि आपके वहाँ कोई आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको ये क्या अच्छा लग रहा है, ये प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं कि नहीं. दिस इज़ पर्सनल ऑब्जर्वेशन. ये क्वेश्चनर करते हैं जो आप सॉल्व कर देते हैं और आपको मिल जाता है उसका जवाब कि ये प्रोडक्ट कितना मार्केट में अवेलेबल है. नेक्स्ट इज़ टेलीफोन इंटरव्यूज़. आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, वो आपको पूछ रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं, आपके घर में कौन सी एज कैटेगरी. ये टेलीफोन पे हो जाता है, वहाँ पे पर्सनल लोग नहीं जा रहे हैं. नेक्स्ट इज़
मेल सर्वेस, मेल किया जाता है, मेल्स कर देते हैं और थ्रू मेल लोग पूछ लेते हैं कि आप क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स